Hello friends, welcome to my channel. I wish you a very happy new year. We are at the beginning of January and this year is going to be very promising for all of you. Before we move to the predictions for January 23, let us look at how the year 23 is going to pan out for you in a summarized manner. See, in any annual prediction, the three transits that are of very large importance is that of Jupiter, Saturn, pair of Rahu and Ketu, because these are the only planets that stay in one sign for a very long time and therefore they have the capability to give promising results to the individual. So first we will look at Jupiter. So Jupiter will move into the seventh house of spouse and business partnership in April 23. And from here it is going to aspect the ascendant. So Jupiter, whenever it aspects the ascendants, provides stability in the life of an individual. So not only you are going to get stability in life, but this Jupiter is going to provide an opportunity for all the unmarried people to get married, to start a business in partnership, associate yourself with foreigners and people who are already associated with foreigners, whether they work in an MNC or they do business with all kind of foreigners, they are going to get immensely benefited after Jupiter transits in the seventh house, because Rahu denotes everything that is alien or foreigners, and Jupiter's conjunction here with Rahu is going to provide you all the benefits that you can get from foreigners, whether you are getting them through your business or through service. It doesn't matter because Jupiter is also the lord of service. So this will be a very fruitful association for you. Jupiter sitting here is also going to aspect your 11th house of gains through its fifth aspect. So if you are undergoing Jupiter MD or AD in the year 2023, then you will see a lot of gains in the whole year when Jupiter sits here. So from April 23 to April 24, you will also see a lot of gains in your life. The only time when you need to be cautious while dealing with your spouse or partners is between 10th of May to 10th of June, because Jupiter and Rahu are going to be deeply conjunct during this time frame. So you need to be very cautious about how you deal with your business partners or your spouse during this 1 month's time frame. Saturn is going to transition into the its own house from 16th of January. So Saturn's transit in Aquarius is going to create opportunity for you to educate yourself in your domain or in your line of work for the next 2.5 years. So this Saturn movement will is going to provide you an opportunity to enhance your skill set and sharpen your intelligence. Rahu and Ketu are currently posited in the seventh and the first house, and they are going to remain here for most of the year, because this Rahu will move into the sixth house only in November 23 and Ketu will move into the 12th house. So since most of the time will be spent in these signs only, we are not going to discuss that transit at this point of time. But Rahu in 6th and Ketu in 12th are considered extremely good, because Rahu in the 6th will dismantle your enemies and Ketu in 12th will open your eyes to a higher spiritual frame. So people who are into spirituality will immensely benefit from this Ketu's transition into the 12th house. So overall, if you look at how this year is, this the planets are aligned very beautifully, and this year is going to be exceptionally good for you. Now coming back to the prediction for the month of January. For January 23, Ascendant Lord is going to be transitioning through the fourth house. So this is going to be a great month for experiencing peace of mind and living in a happy domestic environment. This is one of the best places for ascendant to be, and Libra ascendant people with Venus in the fourth house in their birth chart spend their old age in a very peaceful manner. And this whole month is about enjoying the comforts of your home, be happy and enjoying the comforts of your vehicle. Jupiter continues to pass through its own sign and will support people who are in jobs related to teaching, healthcare, and any job that involves application of the knowledge. So, best dates for people who want to change their jobs in January is from 14th to 24th of January. Saturn, as I have said earlier, will be transitioning into the fifth house. So, students who are planning to appear for a competitive exams, the best time for them is at the beginning of the month, which is from 1st to 3rd of January. But this month is not favorable for people who are involved in the stock market, and my suggestion would be to stay away from the market till the end of February. Let the planetary alignment come to you and then you participate in the market.
So stay away from the market till February end. 22nd January to 14th of February is the time to work on a new idea and to get recognized by your peers for your creativity. So all the people who are artists or work in an area where ideas are evaluated, like those in advertising agency, will see a very good time frame in this month. Mars is going to pass through the eighth house and it is going to continue to aspect its own house of self-earned wealth. So all those people that are connected with sectors related to healthcare, petrochemicals, specialty chemicals, or defense sector, they are going to see a huge inflow of money in this month. The dates where you will see a substantial inflow of cash are 25th, 26th, and 27th of January. Rahu is passing through the 7th house, and this Rahu will not provide you the benefit of starting a new business or getting married, but both of these possibilities will start to materialize after Jupiter moves here. So, as I've said earlier, after April 23, all of you will get an opportunity to get married or start your own partnership business. Now, there are also certain dates when you need to be very cautious, and these are the dates when moon passes through your 6th, 8th, and 12th house. So, for you, the dates where you need to be very cautious are 4th and 5th of January, 9th, 10th, and 11th of January, and 20th and 21st of January. Just watch out for these 7 days. You need to be very cautious and postpone any key decisions. Don't take it during these dates. Overall, this is going to be a very, very good month for you. So that's the summary for you for this month. I would request you to subscribe to my channel and thank you very much for watching. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसाद जोशी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपको नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। हम जनवरी 2023 की शुरुआत में हैं और इसके पहले कि हम लोग जनवरी 2023 का प्रेडिक्शन देखें, एक क्विक नज़र डालते हैं कि ये साल आपके लिए कैसे निकलेगा। देखिए, जब भी कभी आप एनुअल प्रेडिक्शन को देखते हैं तो खाली तीन ग्रहों का ही गोचर सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। एक है शनि, दूसरे हैं गुरु और तीसरे होते हैं राहु और केतु। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ग्रह एक स्थान में काफ़ी ज़्यादा समय बिताते हैं और इसलिए यहाँ पर उनके परिणाम देने की संभावना बहुत ज़्यादा बलवान हो जाती है। इसके अलावा राहु केतु चूंकि हाइपोथेटिकल पॉइंट्स हैं तो वो धरती के बहुत नज़दीक हैं और उनका भी इफेक्ट धरती पे बहुत ज़्यादा आता है। इसके अलावा गुरु और शनि साइज में बहुत बड़े होते हैं तो उनका भी मैग्नेटिक फोर्स धरती पे बहुत ज़्यादा लगता है। इसीलिए इन्हीं ग्रहों के गोचर को किसी भी एनुअल ट्रांजिट में सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो गुरु यहाँ पे अपनी छठवीं भाव से सातवें भाव में अप्रैल 2023 में स्थानांतरण करेगा। यहाँ पर गुरु आने के बाद सप्तम दृष्टि से लग्न स्थान को देखेगा। तो जब भी गुरु लग्न स्थान को देखता है तो वो आपके जीवन में व्यक्ति को स्थायित्व प्रदान करता है। इसके अलावा गुरु यहाँ पर आने के बाद जितने भी लोगों की शादी नहीं हुई है उनके शादी होने के योग बनेंगे। अगर आपका कहीं पर भी पार्टनरशिप में बिजनेस करने का मन है तो वो भी आप अप्रैल 2023 से 24 के बीच में शुरू कर पाएंगे। राहु और गुरु की युति बनेगी मई और जून के महीने में। तो यहाँ पर जितने भी लोगों का संबंध फॉरेनर्स के साथ आता है, अगर आप विदेशी लोगों के साथ व्यापार व्यवसाय में इन्वॉल्व हैं या आप किसी एमएनसी में नौकरी करते हैं जहाँ आपको फॉरेनर से बात करनी पड़ती है, तो आपको कार्यस्थल पे इन फॉरेनर्स की वजह से काफ़ी फायदा होगा क्योंकि राहु इन्हीं सब लोगों को दिखाता है, अनजान जगहों को, एलियन लोगों को, फॉरेन कल्चर और प्लेसेस को। इसके अलावा गुरु अपनी पांचवी दृष्टि से 11वें यानी कि लाभ स्थान को देखेगा। तो अगर आपकी गुरु की महादशा चल रही है अप्रैल 2023 से 24 के समय में आपको कई तरह के लाभ होंगे। तो ये गुरु का स्थानांतरण आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। खाली एक ही बात आपको ध्यान रखनी है कि गुरु की राहु के साथ युति बनेगी मई और जून के महीनों में। तो इन दोनों महीनों में आप अपने पति या पत्नी के साथ वाद विवाद टालिए और अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी झगड़ों में मत पड़िए, ना ही आप किसी भी ओपोनेंट्स के साथ उलझिए। ये खाली आपको ऐसा समय है जब आपको झगड़ा नहीं करना है किसी के साथ। इसके अलावा शनि का भी मूवमेंट होगा पंचम भाव में। शनि कुंभ राशि में मूव कर जाएंगे 16 जनवरी को। यहाँ पर शनि आएगा तो ये आपको एक मौका देगा अपने नॉलेज को बिल्ड करने का, अपना स्किल सेट बढ़ाने का। और 2.5 साल आपको सीखते रहना है कंटिन्यूअसली, चाहे वो स्किल सेट आपके जॉब से जुड़ा हो या आपके ऐसे कार्यस्थल से जुड़ा हो जहाँ पे कि आप आगे जाना चाहते हैं, मे बी फ्यूचर में आप लाइन बदलना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको अपना स्किल सेट बढ़ाना पड़ेगा और अपनी इंटेलिजेंस को शार्पन करना पड़ेगा। तो ये शनि आपको ये मौका देगा। इसके अलावा राहु केतु नवंबर में मूव करेंगे। नवंबर में राहु छठवें भाव में मूव कर जाएगा, आपके केतु 12वें भाव में। तो ये दोनों ही पोजीशंस बहुत अच्छी कहलाती हैं।
हम उनको अभी इसलिए नहीं डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अक्टूबर तक यानी 2023 के 10 महीनों तक ये दोनों इसी स्थान में बैठे रहेंगे। तो जब ये मूव करेंगे तब मैं एक अलग वीडियो बना के उसका आपको ट्रांजिट एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा निकलने वाला है, क्योंकि शनि भी अपनी स्वयं की राशि में त्रिकोण में बैठा हुआ है और आपके लग्न के लिए शनि योग कारक होता है। तो अगर आपकी शनि की महादशा चल रही है तो ये आपके लिए और भी ज्यादा लाभदायक होगा इस तरह का ट्रांजिट। अभी एक बार जनवरी 2023 के प्रिडिक्शंस पर आते हैं। देखिए, जनवरी में लग्नेश शुक्र चतुर्थ भाव से भ्रमण करेंगे तो आपके लिए ये महीना बहुत अच्छा निकलेगा। चाहे वो आप घर पे सुख शांति का अनुभव करें या आपको मानसिक शांति मिले, ये महीना बहुत अच्छा है डोमेस्टिक एनवायरनमेंट के लिए। और ये इस तरह का प्लेसमेंट तुला लग्न वालों के लिए लग्नेश चतुर्थ भाव में बैठना सबसे बेस्ट प्लेसमेंट में आता है। कोई और अगर प्लेसमेंट आप कंपेयर कर सकते हो तो कर्क लग्न वालों के लिए चंद्र का चतुर्थ भाव में बैठना भी इसी तरह का बेहतरीन प्लेसमेंट होता है। जिनकी भी लग्न कुंडली में इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है, कर्क लग्न है या तुला लग्न है और लग्नेश चतुर्थ भाव में बैठा होता है, उनको पूरी जिंदगी मानसिक शांति मिलती है और उनका बुढ़ापा भी बहुत चैन से कटता है। लास्ट की स्थिति उनके जीवन की सबसे अच्छी होती है। तो ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट है और आपको ये महीने में बहुत मजा आएगा। चाहे आप अपने घर में रह के कंफर्ट्स एंजॉय करें या आप अपने व्हीकल्स से कंफर्ट एंजॉय करें, वो आपके ऊपर है, लेकिन ये महीना बहुत अच्छा है। गुरु अपने ही स्थान से भ्रमण करते रहेंगे। गुरु का यहाँ पर छठवें का लॉर्ड यानी कि सर्विस का लॉर्ड आपके लिए गुरु बनता है। जितने भी लोग शिक्षा संबंधित क्षेत्र से हैं या हेल्थ केयर से जुड़े हुए लोग हैं या कोई भी ऐसा काम जिसमें आप प्रैक्टिकल नॉलेज अप्लाई करते हैं, वो बहुत अच्छा आपको परिणाम देगा ये गुरु जनवरी में। और जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं उनके लिए मिडिल ऑफ द मंथ से बहुत अच्छा समय है। सो 14 जनवरी से 24 जनवरी तक का समय आपके लिए नौकरी चेंज करने के लिहाज से बहुत अच्छा है। जैसा मैंने पहले बताया, शनि आपके कुंभ राशि में आ जाएंगे 16 जनवरी से। सो छात्रों के लिए बहुत अच्छा समय है, पंचम भाव से जुड़ा हुआ है तो। और गुरु के साथ भी अप्रैल के बाद त्रिरेकादश योग बनना शुरू हो जाएगा, तो ये अच्छा समय रहेगा स्टूडेंट्स के लिए भी। 2023 जनवरी में जो सबसे बेस्ट डेट है छात्रों के लिए वो है 1 से 3 जनवरी। ये बहुत अच्छा समय है विद्यार्थियों के लिए। लेकिन अगर आप स्पेक्यूलेशन से जुड़े हुए हैं, स्टॉक मार्केट से आपका संबंध है, तो मार्केट से बाहर हो जाइए। जनवरी और फरवरी दोनों ही महीने आपके लिए फेवरेबल नहीं रहेंगे। अभी मार्केट की स्थिति भी कुछ खास अच्छी नहीं है, तो फरवरी तक आप मार्केट से संन्यास ले लीजिए। अगर आपका पोर्टफोलियो में आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो निकल जाइए उसमें से, आपको कोई लाभ होगा नहीं। फरवरी के बाद आप भले ही फिर मार्केट में एंटर कर सकते हैं, तब तक जो अभी अनसर्टेनिटी बनी हुई है मार्केट में वो भी दूर हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है जनवरी महीना, लेकिन स्पेक्यूलेटर्स के लिए नहीं है। अगर आप एडवर्टाइजिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं या किसी भी ऐसे क्रिएटिविटी वाले फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपको 22 जनवरी से 14 फरवरी तक का समय ऐसा होगा जिसमें आप कुछ नए आइडिया पे काम कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपको रिकग्निशन मिलेगा अपने साथ के काम करने वाले पीयर्स या कोवर्कर्स से। तो ये बहुत अच्छा समय है उन लोगों के लिए जो दिमाग से जुड़ा हुआ क्रिएटिव काम करते हैं। अभी मंगल अष्टम भाव से भ्रमण करते रहेंगे। मंगल यहाँ से अपने ही भाव को देखेंगे और द्वितीय भाव सेल्फ अर्न वेल्थ का भाव होता है। तो यहाँ पे तुला लगने के बहुत से लोगों को मंगल से जुड़ी हुई चीजों से भी फायदा होता है। अगर आप मान लीजिए कि पेट्रोकेमिकल्स के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं या किसी भी ऐसे डिफेंस सेक्टर स्पेशलिटी केमिकल्स में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत फायदा होता है, क्योंकि ये मंगल से जुड़ी हुई चीजें हैं। भूमि वगैरह में भी इन्वेस्ट करते हैं तो भी उसमें भी तुला लग्न वालों को फायदा होता हुआ दिखता है। तो इन्हीं सब सेक्टर्स में अगर आप काम कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं एज अ व्यवसाय के तौर पे, तो भी ये मंगल आपको बहुत पैसा ला के देगा। जनवरी में जो सबसे बेहतरीन दिन है पैसा आने की दृष्टि से वो है 25, 26 और 27 जनवरी। अभी राहु यहाँ पर सप्तम भाव से ही भ्रमण करते रहेंगे, तो राहु का सप्तम भाव से भ्रमण यानी आपके शादीशुदा जिंदगी में थोड़ा सा परेशान करने वाला होता है। जिनकी भी लग्न कुंडली में राहु सप्तम भाव में होता है उनको हमेशा ये सजेशन दिया जाता है कि आप इंटरकास्ट मैरिज कीजिए या आप फॉरेनर से शादी कर लीजिए, तब ये राहु आपकी शादी चलने देता है। नहीं तो फिर ये राहु शादी तोड़ने के काम में लग जाता है, क्योंकि राहु दिखाता ही फॉरेनर्स को है। तो अगर आप उसका वो प्लेसमेंट यूटिलाइज कर लेंगे तो आपको फायदा होगा, नहीं तो फिर नुकसान होने वाली बात है। तो यहाँ पे राहु शादी नहीं हुई है तो उसके अभी इस समय में कुछ खास आपके लिए मौके नहीं है। गुरु जब यहाँ आ जाएगा सप्तम भाव में अप्रैल 2023 के बाद, तभी आपका शादी का भी मौका बनेगा और कोई नया बिजनेस चालू करने का भी मौका तभी मिलेगा। गुरु के सपोर्ट के बिना ये नहीं हो पाएगा। अभी हर महीने में कुछ ऐसे दिन होते हैं जब आपको सावधान रहना पड़ता है, जब चंद्र 6, 8, 12 से निकलता है। तो आपके लिए ये दिन है 4 और 5 जनवरी, 9, 10 और 11 जनवरी और 20 और 21 जनवरी।
इन 7 दिनों में आप कोई भी की डिसीजन लेना टालिए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है। मानसिक शांति का आप अनुभव करेंगे। लग्नेश का चतुर्थ भाव में होना बहुत ही बेहतरीन कहलाता है। इसके अलावा गुरु भी अपनी राशि में बैठे हैं, शनि भी अपनी राशि में आ जाएंगे और अप्रैल के बाद गुरु अपनी मित्र राशि में चले जाएंगे सप्तम भाव में। तो ये साल बहुत अच्छा निकलेगा आप लोगों के लिए, और जनवरी का महीना भी आपके लिए बहुत अच्छा है। ये आपकी समरी है इस महीने की। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।